Good morning, all of you, and here is an introductory lecture to probability, and I'll be coming with rank booster in the upcoming lectures as well. So let's start with the first question. Let's say we have a set S containing numbers from 1 to 100, 1 to 3 till 100. Okay, we need to select three numbers from here. So three numbers are randomly selected without replacement from the set of numbers from 1 to 100. We have to find probability that the number selected will be in AP, arithmetic progression. And the second part is probability that the number selected will be in geometric progression. Okay, the first question is relatively simple. The second is more technical because we have to do many case making. Okay, so let's start with the first question. So solution for first part goes like this. Let's say we have numbers 1, 2, 3 till 100. And just to have a feel of the question, let's take some particular examples which are in AP. तो एक एग्जाम्पल तो 1 2 3 ही दिख रहा है. क्यों? क्योंकि 1 2 3 एक AP में है, कॉमन डिफरेंस 1 पे. फिर दूसरा एग्जाम्पल 2 4 6 दिख रहा है, ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस 2. ऐसा भी एग्जाम्पल दिखेगा 1 5 और 8 विद कॉमन डिफरेंस 3. So one way of doing this problem is you can fix common difference 1 and scan through the all possibilities like 1 2 3 2 3 4 करते करते 98 99 100. So 98 numbers you will get with common difference 1. ऐसे ही with common difference 2 3 करके पूरा scan कर सकते हो and then add it. So that is method 1 which I will not do. There is a smart way of doing this. Now before we go further, make sure like an arithmetic progression, whether you select 1 to 3 or 3 to 1, it's fundamentally same because the numbers are selected from the set. So if let's say if I select 3 to 1, you'll be tempted to tell it will be the arithmetic progression having common difference -1. ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है. इनफैक्ट मैं पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि आइदर आप 1 2 3 बोलो, so that selection automatically implies by default selection of 3 to 1 also. Okay, so we are not considering 3 to 1 and 1 to 3, the order to be different. Now in these 100 numbers आप देख सकते हो, let's say if we have selected A B C which are in AP, so clearly 2B will be A plus C. This is a fundamental definition of being in arithmetic progression. Now we know clearly whatever A and C be, but 2B is an even number. तो अब मेरे पास दो केस बनता है, या तो A ऑड हो जाए और C ऑड हो जाए, ये एक केस 1 बनेगा, या फिर A इवन हो जाए एंड C भी इवन हो जाए. ओके, सो वी हैव ओनली दीज टू पॉसिबिलिटीज अंडर विच वी विल गेट आवर सॉल्यूशन. ठीक है, चलो अब फर्स्ट पॉसिबिलिटीज को हार्नेस करते हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ इज ऑड and second possibility both is even. So out of 100 numbers we have 50 odd numbers 1 3 5 okay till 99, and we have remaining, so this is odd number set, and we have even number again 50, so which is starts with 2 4 and goes till 100. So if I select any odd number A and any odd number C, by default B will also be the part of set. जैसे अगर suppose मैं 1 और 3 select कर लिया, so automatically by default with selection of 1 and 3, 2 will automatically come. Why? Because A plus C by 2 will be divisible. Okay, and you know B is a mean of A plus C, so automatically B lies somewhere between A and C. And since A and C are integers, तो of course B भी integer हो जाएगा. इसका मतलब जस्ट आई नीड टू सेलेक्ट एनी टू नंबर फ्रॉम दिस ऑड सेट. सो 50C3 एवरेज सेलेक्शन विल गिव मी यूनिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे कोई 100 और 99 सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली इसके करस्पॉन्डिंग द बीच वाला टर्म बाय डिफॉल्ट सेट हो गया, इट्स फिक्स्ड फ्रोजन, यू डोंट हैव अ चॉइस, वो 50. सो वी हैव 50C3 टू क्रिएट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज ऑड, एंड अगेन वी हैव 50C3, sorry 50C2 because we are selecting two of them, rest is automatically set, and again we have 50C2 from even number. For example, if I select 2 and 4, automatically by default the beach wala term is selected as 3. So the answer for this problem is 50C2 plus probability in AP equals 50C2 plus 50C2 divided by total is 50C3. This becomes 2 times of 50C2 over 50C3. ठीक है, so this was a very simple problems, and if you evaluate this, इसका वैल्यू जो आ रहा है वो 1/66 आ रहा है. It means there is 1 in 66 chance. Okay, if you operate this randomly, roughly with let's say 66,000 times, then possibly around 100
सॉरी पॉसिबली अराउंड 1000 टाइम्स से चांस है जो आपका वो 3 नंबर जो मिलेगा वो AP में मिल जाएगा, क्योंकि वो 3 नंबर जैसे 1, 2 और 10 भी मिल सकता है, तो बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है सिस्टम में. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन व्हेन दे आर इन GP. अब दिस इज मोर टेक्निकल. ठीक है, वाई दिस इज मोर टेक्निकल? बिकॉज अगर वो GP में होगा तो फिर आपको केस मेकिंग्स बनाने होंगे. सो अगेन लेट्स टेक द B पार्ट ऑफ दिस. We have again set 1, 2, 3 till 100, 98, 99, 100. Suppose I pick up any 3 number which are in GP. So A, AR and AR square. ये तीनों नंबर उठा लिया. ठीक है, अब मुझे तो पता है जो मिनिमम वैल्यू ऑफ A जो है, A का जो वैल्यू है वो मिनिमम जो है वो तो 1 होगा. ठीक है, और कॉमन रेशियो का मैक्सिमम लिमिट क्या होगा? क्योंकि विथ मिनिमम A वैल्यू 1 R square will be one of the GP. And we know the maximum term is 100, so R square must be less than equal to 100. तो यहाँ से if I want to pick up the integral R, ठीक है, so I'm taking case of case 1, if R becomes a natural number or integer in this case, तब R का जो maximum possible value है वो तो 7 हो गया. ठीक है, because R will be less than equal to 7. तो यहाँ से you can make case. अब यहाँ से केस कैसे करेंगे? यहाँ से यू हैव टू प्ले विथ R इक्वल टू 1, R इक्वल टू 2, R इक्वल्स 3, R इक्वल्स 4, R इक्वल टू 5, R इक्वल टू 6 एंड R इक्वल टू 7, विच आई विल डू राइट नाउ. लेकिन फर्स्ट द आउटलाइन ऑफ द मेथड. सेकेंड इज केस 2 व्हेन R बिकम्स अ रैशनल नंबर विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर. ठीक है, क्योंकि R कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो, जैसे हाफ आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 4/3 आ सकता है. ओके, 5/3 आ सकता है, 7/3 आ सकता है. सो यू हैव टू चेक फॉर दैट. सो लेट्स से इफ आई चूज R इक्वल्स M/N वेयर M and N आर को प्राइम, M and N GCD is 1 and M is greater than N equal to 1. Without loss of generality we can do this. Why? Because N less than M will automatically be taken care of. I have told you now, if the common ratio, whether you are taking 1 to 4, so this is having common ratio equals 2, or if I take 4 to 1, this is having common ratio equals half. So this is not counted twice, it's basically counted once. क्योंकि आप जब 1 to 4 सेलेक्ट करो और ऑटोमेटिकली 4 to 1 भी उसी में सेलेक्ट हो गया, बिकॉज द सैम्पल स्पेस इज डायरेक्टली 100C3. ओके, सो इन 100C3 1 to 4 and 4 to 1 is selected exactly in the same way. So if you want to multiply it by 2, your sample space will be magnified by 2, so hence your particular outcome will also be, experimental outcome will also be multiplied by 2. So anyway प्रायोरिटी के आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ से आप अगर ऐसा करोगे तो अब यहाँ से वी कैन नोट दैट 1 विल बी लेस देन A, लेस देन इक्वल टू AR एंड लेस देन इक्वल टू AR स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू 50. राइट, सो यूजिंग दिस वी आर गेटिंग 1 लेस देन इक्वल टू A, लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ से आप देखो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50 NA स्क्वायर बाई NM स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, ये आप सोच सकते हो जस्ट विथ प्लेइंग विथ सम ऑफ द वैल्यूज विच यू कैन चेक. And where of course NA square, A must divide NA square. So A must divide NA square. तो प्रोबेबिलिटी इस केस में फिर आपको लाना होगा. तो बेटर मतलब इसको हाउ टू डिकोड, ऑफ कोर्स वी हैव टू डू केस मेकिंग. ओके, जैसे R इक्वल टू 1/2, 2/2, 3/2, 2/2 इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इन फर्स्ट केस, एंड 3/2, 4/2 इज टेकन केयर ऑफ, 5/2. तो ऐसे करके केस मेकिंग करेंगे. ओके, सो आर यू रेडी? चलो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे केस मेकिंग बहुत सारे आने वाले हैं. ठीक है, एट लास्ट आई विल गिव यू अ हिंट फॉर द जनरल सॉल्यूशंस ऑल्सो विच कैन बी डन लाइक इन जनरल, नॉट इवन फॉर 100 बट इवन फॉर N, लेकिन दैट्स अ बिट मोर इन्वॉल्व्ड. सो यूजुअली आई टेक अप फॉर लाइक ओलम्पियाड काइंड ऑफ कोर्सेज अ जनरल वर्जन ऑफ दिस प्रॉब्लम. एडवांस के लिए तो केस मेकिंग से आप इसको कर सकते हो, विच आई विल शो यू राइट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट विद द केस मेकिंग. सो फर्स्ट केस आई एम गोइंग व्हेन R इक्वल टू 1. अब R इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 मीन्स नंबर्स विल बी सेम, 1 1 1 और 2 2 2. सो दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज एनी वे यू आर टेकिंग 3 नंबर्स. तो इससे तो 0 केस बन गया. R इक्वल्स 2 में व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? विल गेट 1 to 4 द मिनिमम पॉसिबिलिटीज, अगेन 2 4 8. तो ऐसे ऐसे करके अगर मैं करूँ तो 25 50 100. राइट, तो यहाँ से नंबर ऑफ काउंट दैट आई एम गेटिंग इज 25. रिमेंबर दिस. R इक्वल टू 3 से विल गेट 1 3 9. ऐसे करते करते लास्ट विल गेट 11 33 99 एंड दैट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ अगेन 11 केस. नेक्स्ट R4.
So 1 4 and 16, next is 4 16 64. आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. Even we'll have cases like 3 12 and 48. तो ये भी केस आएगा. जैसे 5 and if I take 20 and 80, तो ये भी केस आएगा, ठीक है. तो ऐसे आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ केस लास्ट विल बी 4 20 100 विच विल बी एग्जॉस्टेड. 4 20 100. तो यहाँ से नंबर ऑफ केसेस दैट आई एम गेटिंग इज 4. ओके, सो हियर दिस वाज 11 25. नेक्स्ट आर इक्वल टू 5 में सिमिलरली 1 5 25 से स्टार्ट. अब देखो वी कैन हैव अगेन केस लाइक मोर केसेस. फॉर एग्जांपल 3 15 and 75 is also possible. ऐसे करते करते what will be the last possibilities 5 में. So if last number is 100, always think of last number 100, so 20 और 4 यहाँ से भी आ जाएगा. तो यहाँ से number of cases कितने बने, that is less only, so 4 ही बने. Okay, with r equal to 4 we are getting 6 case, not 4, sorry, क्योंकि 4 1 2 3 4 तो दिख ही रहा है. 5 one more case will come, so 6 case. R equal to 6 will give just 2 case, 1 6 36 and 2 12 72, क्योंकि उससे आगे we can't. So always start from the last, like multiple of 6 from the last, ठीक है. 72 के बाद क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हाँ with common ratio 6 नहीं आ पाएगा. तो this will give R equal to 6 will give 2 case. R equal to 7 1 7 49 2 14 98. So that is going to give again 2 case. Still we have r equal to 8. So r equal to 8 corresponds to 1 8 64. So we have only one case. R equal to 9. R equals 9 will give 1 9 81. So only one case. And r equal to 10 is giving 1 10 100. So we have only one case. तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ केस इफ विल काउंट, तो यहाँ से 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 4 + 6 + 11 + 25. So total number of cases we are getting 53. The first case से we have final answer of 53. Okay, now that's not the end of the game, because now this is more tricky part with when common ratio is a fraction. Okay, so when case 2, which I was discussing, like you can be little bit smart if you apply this and play with m and n values within the window. ठीक है. अब इसको यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो इस केस में. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई विल स्टार्ट विद कॉमन रेशियो, ठीक है. सपोज हाफ 1/2. तो अब 1/2 कॉमन रेशियो से, तो सपोज इफ आई टेक 1, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टर्म 1/2 होगा, तो ये तो ऐसे गया. अब 1/2 कॉमन रेशियो इज सेम एज 2 कॉमन रेशियो, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि 2 4 6 इज ऑलरेडी हैविंग अ कॉमन रेशियो ऑफ 2. सो इफ विल टेक 6 4 2 इट विल गिव कॉमन रेशियो इज हाफ. Okay, so I will not consider any common ratio which is 1 by integer 1 by n. For example, we have already considered 1 is not allowed, 1/2 1/3 to 1/10 common ratio is considered. So these varieties of fraction is considered in the above case only, क्योंकि उसका रिवर्स कॉमन रेशियो पॉसिबल है. तो अब क्या आ जाएगा, चलो अब 3 से स्टार्ट करते हैं. तो कॉमन रेशियो पॉसिबिलिटीज इज 3/2. सो दिस इज पॉसिबल. अब इसमें से नंबर ऑफ केसेज विल बी 4 6 9. With 3/2 you multiply 8 with 3/2, so we'll have 12. Next number is 18. ऐसे करते करते we'll have 44 66 and 99. So this is going to give me 11 cases. 4/2 is taken care of, so next I'll take 5/2 and that will give 4 10 25. Next is 8 20 50. Third is 12 30 75. And the last one is 16 40 100. 16 40 100. तो यहाँ से नंबर ऑफ केसेस 4 बन रहे हैं. अगेन 6/2 मीन्स 3 टेकन केयर ऑफ, तो 7/3. देख रहे हो ना हम कैसे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, 1 by 1 एग्जॉस्ट कर रहे हैं. 4 14 49 8 28 98. तो दिस इज 2. अब मे भी एडवांस वाला आपको 50 के लिए पूछ देगा, बिकॉज 100 में थोड़ा केस मेकिंग ज़्यादा बोल रहा है. 9/2 देर इज़ नो यू लाइक ऑफकोर्स देर इज़ अ क्लोज फॉर्म फार्मूला, लेकिन आप बहुत फास्ट इसको नहीं कर पाओगे. ठीक है, आप जैसे आयलर्स फंक्शन या फिर कुछ नंबर्स थ्री लगा के इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज दोज हु वांट्स टू अप्लाई नंबर थ्री यू कैन अप्लाई हेयर, मीन्स विंडो को फास्ट कर सकते हो. बट स्टिल केस मेकिंग इज इनएविटेबल, आपको केस मेकिंग करना ही होगा.
हाँ, इसको थोड़ा स्मार्टली कम केस मेकिंग से बना सकते हो। चलो 9/2 पे तो एक ही आया 4, 18 और 81। देखो जब वेन एवर आई एम टेकिंग 9/2 मेक श्योर इसका ओके दिस मस्ट गिव 2 स्क्वायर्स मीन्स 2 to the power 2 मस्ट एटलीस्ट भी प्रेजेंट है। क्यों? 2 का पावर 2 होगा तब फिर नेक्स्ट एलिमेंट में एटलीस्ट 2 होगा सच दैट अगेन 9/2 मल्टीप्लाई विथ 18 वो 81 हो जाएगा। सपोज अगर नंबर में 6 से स्टार्ट करो सो मल्टीप्लाई विद 9/2 विल बी 27। अब नेक्स्ट नंबर में इफ आई मल्टीप्लाई विद 9/2 आई विल नॉट गेट इंटीजर। व्हाई? बिकॉज द बिगिनिंग नंबर वाज हैविंग ओनली सिंगल 2 सो इन नेक्स्ट स्टेप सिंगल 2 गॉट एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो इसीलिए ये कभी भी बाई 2 वाले में जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें एटलीस्ट 2 स्क्वायर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। अब तुम बोलोगे अगर 8 होगा तो क्या होगा, तब क्रॉस कर जाएगा। तो 8 होगा तो ये 36 हो गया। ठीक है, अब 36 इंटू 9/2 जो हो गया तो 18 इंटू 9 तो ये तो 100 को क्रॉस कर गया, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। सो मेक श्योर वेन एवर यू हैव m/n तो इसमें जो है वो n स्क्वायर तो पॉसिबल होना ही चाहिए फर्स्ट में, अदरवाइज आइदर इट विल बी एग्जॉस्टेड और इट विल क्रॉस द विंडो। ठीक है, तो चलो अब सिमिलरली अब हम 4/3 विंडो पे लेते हैं। 4/3 विंडो पे लेते हैं तो 4/3 विंडो पे क्या होगा, 4/3 अगर मैं कॉमन रेशियो ले लेता हूँ क्योंकि बाई 2 वाला गया। अब अगेन 1/3 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो 3 एग्जॉस्टेड है। 2/3 3/2 ऑलरेडी आई हैव टेकन केयर ऑफ। तो अब 3/3 इज 1 ऑलरेडी गॉन। सो 4/3 5/3 6/3 डन ऑलरेडी इंटीजर विच इज़ 2। 7/3 वी हैव टू डू 8/3 9/3 इंटीजर ऑलरेडी डन 10/3। तो अब 4/3 के लिए मिनिमम फर्स्ट एलिमेंट जो होगा बाबू वो तो 9 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो 9 हुआ तो अब नेक्स्ट 12 होगा और नेक्स्ट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये आप चेक कर लो। या फिर 9 2 जा सपोज 18 हो गया तो अगर 18 हो गया इसमें भी 2 3 जार देयर सो दैट नेक्स्ट मेंबर इज 24 और फिर इसका नेक्स्ट मेंबर इज 32। तो ऐसे करके 4/3 के करस्पॉन्डिंग जो आपका आएगा वो 6 टर्म्स आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली 5/3 का आप चेक कर सकते हो। अगेन मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 9 का है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर 9 देंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 15 एंड देन वी हैव 25। तो ऐसे करके वी हैव ओनली 4 केसेस हियर। विथ 7/3 विल हैव 2 केसेस। 8/3 अगेन नंबर ऑफ केसेस विल बी 1 एंड 10/3 नंबर ऑफ केसेस विल बी। क्योंकि आप फिर सोच सकते हो अगर 9 फर्स्ट केसेज है तो 30 और 30 है तो डायरेक्ट 100 चले गया। ठीक है, विथ 10/3 आई मीन। सो देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो आ रहा है वो 2 1 1 4 और 6 आ रहा है। ठीक है, और ऊपर वाले से भी आपको पता है ये जो आ रहा है 1 2 4 11। स्टिल गेम इज नॉट ओवर क्योंकि ये तो 4/3 वाला है। अब अगेन 5 में बाई 4 पे जाएंगे, फिर बाई 5 पे जाएंगे। तो बाई 4 पे जाने के लिए अब 5/4 अगेन 1/4 4 इज गॉन। 2/4 हाफ 3/4 4/3 में गया। 4/4 1 ही आ गया। तो 5/4 अब 5/4 के लिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए सोचो। इसमें 2 और 3 है तो फर्स्ट एलिमेंट में 2 और 3 तो होना ही चाहिए। तो 6 से स्टार्ट होगा और अगर मैं 5/4 कर दूँ इसको तो नेक्स्ट एलिमेंट कितना होगा सोचो। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 6 को 5/4 से 2 2 2 3 10/2 तो वो तो अवेलेबल नहीं है। तो बताओ ये किससे स्टार्ट होगा 5/4। ठीक है, सो 2 स्क्वायर से। ठीक है, तो 2 स्क्वायर सपोज 4 से इफ आई स्टार्टेड तो इफ आई स्टार्टेड विथ 4 तो फिर 5/4 विल गिव 5 फिर नेक्स्ट इज नॉट इंटीजर। तो इसका मतलब 5/4 जो होगा वो 4 स्क्वायर से स्टार्ट होगा जैसे 16 से हुआ। तो अगर 16 से स्टार्ट किया तो 5/4 विल गिव 20 अगेन 5/4 इज गिविंग 25। तो ये पॉसिबल है, देख रहे हो 16 25। तो ऐसे करके आप काउंट करोगे तो यहाँ से 4 केसेज जाएगा। विथ अगेन 7/4 विल गेट 2 केस एंड विथ 8/4 इज डन सो 9/4 विल गेट 1 केस। क्लियर? तो यहाँ पे अभी मैं सिंपली केस मेकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि केस मेकिंग एग्जॉस्टिव केस मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस। आप लास्ट ईयर पेपर देखोगे तो काफ़ी एग्जॉस्टिव केस मेकिंग है। स्मार्टनेस एपी में था लेकिन फ्रैक्शन के कारण स्मार्टनेस यहाँ थोड़ा कम हो गया। ठीक है, अब चलो फिर 6 पे चलते हैं। तो 6 पे अगर 6/5 पे चलते हैं तो 1 2 3 4 तक तो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। 4/5 इन 5/4 तो 6/5 के करस्पॉन्डिंग कॉमन रेशियो के करस्पॉन्डिंग 2 केस आएगा।
और फिर आपको 25 लेना होगा 5 स्क्वायर। तो अगर आप 25 फर्स्ट लोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 30, ओके, इंटू 6/5। और फिर अगर लोगे तो ये 36 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम फिर 50 ले लोगे 25 का मल्टीपल, अब सपोज 50 ले लिया तो 6/5 60 आ गया। अब फिर 6/5 5 कितना आ गया 72, ठीक। तो यहाँ से विल गेट ओनली 2 केस। अगेन 7/5 विल गिव 2 केस, 8/5 इज गिविंग 1 केस एंड 9/5 इज गिविंग 1 केस। अब 6 पे लेते हैं तो 7/6 सिर्फ एक मात्र है जो 36 इंटू 6 इंटू 36 42 और ये आ जाएगा 49। अगर आप 36 का 72 लोगे तो फिर भी विंडो क्रॉस करेगा, तो यहाँ से तो सिर्फ एक केस आया, ठीक है। फिर मैं 8/7 अगर लूँ तो यहाँ से सिर्फ एक केस आएगा 49 वाला। फिर अगर मैं 9/7 लूँ तो सिंगल केस दिख रहा है और 10/7 भी सिंगल केस दिख रहा है, ठीक है। फिर बाई 8 पे आए तो 9/8 सिंगल केस दिख रहा है बिकॉज 64 से स्टार्ट होगा और वो सिर्फ एक नंबर आएगा। लास्ट इज 10/9, तो 10/9 भी एक ही केस आएगा, ठीक है। तो फाइनली वो कितना आएगा 10/9। सोचो ये कितना केस आएगा 9/10 आई हैव टेकन नो बिफोर, तो इससे फाइनली आपका एक ही केस बना, ठीक है। तो फाइनली इफ आई ऐड ऑल ऑफ दिस, तो इसको ऐड कर रहे हैं 1 1 3 6, ये 51 केस बन रहा है, नहीं 52, 51 प्लस 52 केस बन रहा है। So finally we have the answer for this problem. So probability that 3 numbers selected will be in GP is 53 plus 52 divided by 100C3, और ये जो वैल्यू बन के आया वो हो गया 105/100C3. So this was more technical questions, ठीक है। सॉल्यूशन में यू माइट हैव फेल्ट लाइक यहाँ पे केस मेकिंग है, बट द पॉइंट वाज हाउ स्मार्टली यू आर डूइंग केस मेकिंग। तो आप अगर स्मार्टली केस मेकिंग करते हो तो फिर उससे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन आई विल कीप इन द नेक्स्ट वीडियो। द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ax² plus bx plus c are determined by throwing an ordinary dice, means dice from 1 to 6. Find the probability that the framed equation will have real root. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो भी कोएफिशिएंट है वो आप एक डाइस थ्रो करके डिटरमाइन कर रहे हो, तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। जो भी ये प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब वो जो इक्वेशंस होगा उसका क्या चांस है रूट्स जो होंगे रियल होंगे। तो अब डाइस में आपको पता है सैम्पल स्पेस जो बनने वाला है 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो जैसे फर्स्ट टाइम डाइस थ्रो किया, सेकेंड टाइम किया और थर्ड टाइम किया, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। वी हैव 6 choice 6 choice 6 choice, सो 6 क्यूब विच इज 216 इज टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्पेस, टोटल सैम्पल स्पेस, सैम्पल साइज। नाउ वी वांट रिक्वायरमेंट b² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। तो अब यहाँ पे फिर केस मेकिंग करना पड़ेगा। केस मेकिंग कैसे करना पड़ेगा, तो ac को केस पकड़ के कर लेते हैं। व्हेन ac इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ac 7 पॉसिबल ही नहीं है। ac 7 क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि b² जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू इट शुड बी 4 times ac, सो 28, ठीक है। तो अगर आप इसमें केस लेंगे विच आई विल टेल राइट नाउ, ठीक है। सो विल चेक लाइक हाउ दोज पॉसिबिलिटीज इज ऑलरेडी टेकन अवे। तो व्हेन ac इज 1 वी नो द ओनली पॉसिबिलिटीज फॉर a and c and hence 4ac maybe, and b² greater than 4ac, and then number of cases. So let's say hash represents number of cases, number of cases. ac 1 पे तो we have only 1 and 1 possibilities, 4ac will give 4, so bs का greater than 4ac, so b का possibilities जो होगा वो क्या आ सकता है 2 3 4 5 6, so we have 5 केस ओवर हियर, ठीक है। ऐसे आप केस मेकिंग कर लेते हो सिंपली। 2 पे वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर ac will be 1 2 और 2 1, and that will give 4ac as 8,
तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ विल बी 3 4 5 6, सो वी हैव 8 पॉसिबिलिटीज़ क्योंकि 2 × 4। नेक्स्ट 3 पे आपका ऐसे ही 1 3 और 3 1 ही बनने वाला है, तो 4AC का वैल्यू 12 आएगा एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस B पॉसिबिलिटीज़ विल बी 4 5 6 एंड विच विल गिव यू 2 × 3, यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़, यहाँ 3, इसका टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़। ऐसे ही 5 के लिए 1 5 एंड 5 1 आने वाला है, सो दिस विल गिव 20 मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटीज़ फॉर B इज 5 and 6 and we have 2 × 2 4 possibilities. Similarly 6 के लिए we have 1 6, see the factors 6 1 2 3 and 3 2 is possible because it matters on dice one whether you are getting 2 or 3. Okay, तो यहाँ से we have 24 as this, so 5 and 6 are the only possibilities, 4 × 2 8. 7 के लिए अब चेक कर लेते हैं, 7 के लिए 1 और 7 है, 1 7 और 7 1, so that will give what 4AC. 4AC will give 28, राइट। अब जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 1 और 7 डाइस कैन नॉट शो 7, ठीक है। 8 के लिए पॉसिबिलिटी आते हैं, 8 के लिए वी हैव 2 4 and 4 2, तो दिस इज पॉसिबल विच विल गिव 32 एंड द ओनली वैल्यू इज 6, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज। नाउ AC वैल्यू हाइगर देन 9 विल नॉट हैव BS का गेट एन AC, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस जो अपने पास आ गया, नंबर ऑफ केसेस विच आर फेवरेबल, दैट इज 5 + 8 + 6 + 9 + 4 + 8 और +2 + 1 +2 + 1 and that is 43, and the required probability of that event X, and what is event X, like the framed equation will have real root, is 43/216। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें आइडियाज़ था, तो आप कैसे बेसिक केस मेकिंग कर रहे हो। ओके, अब देखो जब कभी आप प्रोबेबिलिटी आप एनसी करते हो तो सबसे पहले तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में आपको केस मेकिंग सही से आना चाहिए। अब केस मेकिंग इतना आसान नहीं है, क्यों आसान नहीं है, क्योंकि इन डिसिप्लिन्ड वे यू शुड नॉट मिस एनी केस। इमेजिन करो यही सिंपल सा प्रॉब्लम है, अब ये डाइस वाला ही अगर जेई में पूछ दे एंड यू हैव टू गिव आंसर अप टू करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, इट्स नॉट हार्ड, क्योंकि हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, आई एम डूइंग जस्ट 9-10 आइडियाज़ ऑफ केस मेकिंग। ठीक है, अब इसमें स्लोली स्मार्टनेस ऑल्सो विल इन्फ्यूज इन द नेक्स्ट लेक्चर, और देखेंगे हम कैसे ये चाइल्डिश केस मेकिंग को भी स्मार्ट कर सकते हैं।